السلام علیکم۔ دل مضطر کس نمبر 8 حال۔ نبیہ نے کمرے میں جا کر شاور لیا، بالوں میں ٹاول رگڑتی باہر آئی اور آئینے کے سامنے آ کر بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ ایک چھینک، دوسری چھینک، تیسری اور پھر چوتھی چھینک نے اسے قریبی ڈبے سے ٹیشو کھینچنے پر مجبور کر دیا۔ ناک کو اچھے سے رگڑ کر نبیہ نے بال برش کرنے کے بعد انہیں جھٹک کر پشت پر پھیلایا اور ڈریسنگ ٹیبل کا وہ دراز کھولا جسے وہ پچھلے 5 سال میں تب ہی کھولتی تھی جب محتشم کے ساتھ کہیں باہر جانا ہوتا یا پھر کسی فیملی فنکشن میں۔ دراز کھول کر اس نے کپڑوں کی میچنگ ساری چیزیں نکالی اور گنگناتے ہوئے پہننے لگی۔ جھمکے، چوڑیاں، رنگز، باری باری ساری جویلری پہننے کے بعد اس نے میچنگ لپسٹک شیڈ اٹھایا، ہونٹوں پر پھیرنے لگی، ہونٹوں کو باہم ملا کر لپسٹک سیٹ کی اور گالوں پر ہلکا سا بلشن لگا کر خود کو ہر زاویے سے چیک کر کے اوکے کرتی بیڈ کی طرف آئی اور سیل پر پھر سے آئی ایم ویٹنگ محتشم کے الفاظ لکھ کر سینڈ کرتی کمرے سے نکل گئی۔ محتشم آفس سے نکلنے کے بعد ابصار علی کی خیریت معلوم کرنے ان کے گھر چلا گیا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ اس کے کہنے کے باوجود بھی ابصار علی نے اسے اتنی تیز برستی بارش میں نکلنے سے منع کر دیا تھا اور اب 2 گھنٹے کے وقفے سے نبیہ کے دوسرے میسج پر وہ بے چین ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں سر، بارش نہ جانے کب تھمے، نبیہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ گھڑی دیکھتا بولا، ہوں، میں نے تم سے پچھلی ملاقات میں بھی کہا تھا نبیہ کو ساتھ لانا تم۔ جی میں ضرور لاتا، مگر آپ جانتے ہیں مجھے دوپہر میں آپ کی طبیعت کا پتہ چلا تو رہا نہیں گیا، اس لیے آفس سے سیدھا یہیں آیا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، خوش رہو۔ ابصار علی اس کی بات پر مسکرائے، وہ جانتے تھے کہ وہ محتشم کو اور محتشم انہیں کتنا عزیز ہے۔ تو پھر اجازت دیں۔ وہ اجازت طلب کرتا ان کی طرف جھکا۔ ابصار علی نے اپنے ضعیف ہاتھوں کو پیار سے اس کے سر پر پھیر کر کندھا تھپکا۔ جیتے رہو اور مزید کامیابیاں سمیٹو۔ انہوں نے دل سے دعا دی، آپ بھی اپنی صحت کا خیال رکھا کریں سر۔ محتشم نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ گزر گئی زندگی، بس اب تو بلاوے کا انتظار ہے۔ وہ افسردگی سے بولے، ایسا مت کہیں سر، آپ جانتے ہیں آپ میرے لیے بابا سے کم نہیں ہیں۔ ان کے بعد جس طرح سے آپ نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا اس فیلڈ میں اور اس کرپشن کے کیس سے مجھے باہر نکالا تھا، میں تا زندگی آپ کا مشکور رہوں گا۔ جانتا ہوں بیٹا، یہ بڑھاپا ایک زندگی گزار کر آیا ہے، سب جانتا ہوں، کون اپنا ہے کون پرایا۔ ان کی آنکھوں میں نمی پھیلتی جا رہی تھی۔ تم جاؤ، نبیہ اکیلی ہوگی گھر پر، بارش تو نہ جانے کب رکے۔ وہ نمی کو اندر اتارتے بولے، جی اپنا خیال رکھیے گا۔ محتشم ان کا ہاتھ تھپ تھپاتے دروازے کی جانب بڑھا۔ گاڑی احتیاط سے چلانا محتشم، بارش کافی تیز ہے۔ جی سر۔ وہ ان کی فکر پر بلند آواز سے جی سر کہتا کمرے سے نکل گیا۔ ابصار علی کا ایک ہی بیٹا تھا، ارم ابصار، جو الہان ملک کا بیسٹ فرینڈ تھا، اور اپنے بیسٹ فرینڈ کی خاطر ہی وہ 5 سال پہلے اپنے بوڑھے باپ کو اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار نہیں بھولتا، پھر بھی نہ جانے کیوں لوگ والدین کو بھول جاتے ہیں۔ ارحم اپنے اس عظیم باپ کو چھوڑ گیا تھا جس نے اس کی تربیت تنہا کی تھی۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد اس ڈر سے دوسری شادی نہ کی، کہیں ان کے اکلوتے بیٹے کو ستیلی ماں کا ظلم نہ سہنا پڑ جائے۔ وہ بیٹا جسے انہوں نے پڑھایا لکھایا تھا، اس قابل بنایا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، اور جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوا تو ذرا سی بات پر پیروں پر کھڑا کرنے والے کو ہی چھوڑ گیا۔ ابصار علی کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ نبیہ اور محتشم کے نکاح میں شریک ہوئے تھے، جو ان کے بیٹے کو گوارا نہ تھا کہ اس کا باپ اس کے دوست کی ایکس وائف کے دوسرے نکاح میں شریک ہو، نکاح بھی اس بندے سے جس کے ساتھ اس پر الزام لگا تھا۔ مگر ابصار علی جانتے تھے کون صحیح اور کون غلط ہے، لہٰذا وہ بیٹے کی بات کو جھٹلاتے اس نکاح میں نبیہ کی طرف سے بطور گواہ شریک ہوئے تھے۔ اس پر ان کا بیٹا ان سے خفا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ اس ملک کو ہی چھوڑ گیا تھا اور پلٹ کر نہیں آیا تھا اب تک، اور شاید پلٹتا بھی نہ، کیونکہ کچھ لوگ کی زندگی میں ان کے کیے کی سزا اذیت ناک پچھتاووں کی صورت میں ملتی ہے، اور شاید ارم ابصار کو بھی پچھتاووں کی آگ میں ہی جلنا تھا۔ مکمل داستاں کہہ دوں یا بس اتنا کافی ہے؟ تم ہی تھے، تم ہی ہو، تم ہی رہو گے۔ ماضی میں گم نبیہ کی ذات کو یاد کرتے کرتے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ الہان نے ٹیبل پر جھکے سر کو اٹھا کر وال کلاک دیکھا تو رات کے 9 بجے کا اعلان کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر چیئر کی بیک پر پڑا کوٹ اٹھا کر بازو پر ڈالا، گاڑی کی چابی اور سیل اٹھا کر وہ آفس سے نکل آیا۔ نیچے پارکنگ میں آیا تو بارش ابھی بھی زور و شور سے برسنے میں بزی تھی۔ الہان نے ایک نظر آسمان پر ڈالی اور بارش سے بچتا بچاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ واپس گھر جا رہا تھا۔ محتشم ابصار کے گھر سے 8 بجے نکل آیا تھا اور اب 9 بجے والے تھے۔ اتنی تیز بارش کے ساتھ تیز طوفانی ہوا میں ڈرائیونگ کرنا بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے موسم کے تیور دیکھتے ہوئے گاڑی سائڈ پر پارک کی اور ڈیش بورڈ پر پڑا سیل اٹھا کر نبیہ کا نمبر ملایا۔ ابھی بیل نہیں گئی تھی کہ ڈیڈ بیٹری کی ٹون ابھری۔ شٹ!
मोहिब ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। व्हाट दी हेल, उसे भी अभी डेड होना था। उसने चिढ़कर सेल वापस डैशबोर्ड पर पटका। अब वो सीट की पुश से सर टिकाए बाहर बरसती तूफानी बारिश को देख रहा था। दिल ना जाने क्यों बेचैन सा हो रहा था। शायद नबिया की वजह से वो घर पर अकेली थी। सिर्फ गेट कीपर ही था उसके अलावा। मेड तो कल ही 2 दिन की छुट्टी लेकर भाई की शादी में गई थी। वो कंपनी मसलता हुआ मुसलसल बाहर देखता बेचैन हो रहा था। 20 से 25 मिनट बाद बारिश को अपने तेवर ना बदलते देखकर वो चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। माजी, मलिक साहब 5 महीने होने वाले हैं और नबी अब्बासी अभी तक आपके घर में आपकी बहू के तौर पर मौजूद है। तो मलिक सुल्तान ने उब्रू अचकाकर पूछा, तो कब से आप उसे? देखो सियाल, फ़िलहाल हम मोहतशिम को करप्शन के केस में डलवाकर मसरूफ़ कर चुके हैं और नबिया का भी शायद अब उससे कोई राब्ता नहीं है। मेड से पता चला था इल्हान और मेरे ऑफिस आने के बाद वो घर पर ही होती है। घर पर तो वो पहले भी थी, जॉब से टर्मिनेट किए जाने पर, और घर बैठे बैठे उसने मोहसिन इब्राहिम से राब्ता किया था। अहमद सियाल ने फिर घुमा फिरा कर बात की। कितनी दफ़ा कहा है सियाल, बात सीधी किया करो, मगर तुम्हारी पहेलियाँ भिजवाने की आदत सख्त ज़हर लगती है मुझे। वो गुस्से से थोड़ा लाउड हुए। उनके तेवर देखकर अहमद सियाल ने मज़ीद बेइज्जती के डर से बचने को अपना सेल उनके सामने किया, जिस पर मोहसिन और नबिहा की एक साथ खड़ों की तस्वीर थी। कब की है ये? वो बेचैन से बोले। आपके दुबई जाने के बाद अरहम अबसार की पार्टी की है ये तस्वीर। फिर तो इल्हान आगाह होगा इससे। मलिक साहब को मायूसी हुई। नहीं मलिक साहब, इल्हान साहब दोस्तों में बिजी थे और तस्वीर मैंने पार्किंग में खींची थी, जहाँ उन दोनों के अलावा कोई ना था। क्या बात हुई उनकी? बात तो मालूम नहीं हो सकी, मैं अपनी गाड़ी में था, लेकिन ज़रूर आपसे रिलेटेड ही हो, क्योंकि नबिया मैडम भी मोहतशिम इब्राहिम को पीछे से पुकारती उस तक आई थी। हूँ, मतलब वो अभी भी मोहसिन इब्राहिम से कांटेक्ट में है। मलिक सुल्तान पुरसोच अंदाज में बोले। जी मलिक साहब। और कोई सबूत, कोई मेल वगैरह? नहीं, मेल का सिलसिला नहीं हुआ दोबारा। अहमद सियाल ताबेदारी से बोला। हूँ, तुम ऐसा करो, इस तस्वीर को और जो तुमने मेहंदी की रात ली थी वो उन दोनों को डिवेलप करवाओ, मगर ये ना काफ़ी सबूत है। मलिक साहब, इन चंद तस्वीरों से इल्हान साहब हरगिज़ बदजन नहीं होंगे। नबी आबासी से बदजन तो वो हो चुका है सियाल, मगर किस हद तक उसका अंदाज़ा नहीं। तुम्हें फ़िलहाल जितना कहा है वो करो, अगर ज़रूरत पड़ी तो इन्हीं तस्वीरों को वैसा भी करवा लेंगे जिससे इल्हान मलिक मुकम्मल तौर पर बदजन हो जाएगा। उस नबीहा अब्बासी से वो मकरू मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए चेयर से उठ खड़े हुए। उनके उठने पर अहमद सियाल भी ताज़ीबन खड़ा हुआ और मलिक साहब के ऑफिस से निकलने पर वो भी मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। इल्हान अपने ऑफिस में फ़ाइल पर झुका बैठा था जब मलिक सुल्तान उसके ऑफिस में दाखिल हुए। बाप को देखकर वो फ़ाइल खिसका कर खड़ा हुआ। कोई काम था तो मुझे बुला लेते आप। हूँ, बैठो तुम। मलिक साहब उसे कहकर खुद भी सामने पड़ी चेयर घसीट कर बैठ गए। खैरियत? इल्हान ने बाप के चेहरे के तासुरात देखकर पूछा। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ और अब भी यही कहने आया हूँ कि अपनी बीवी पर नज़र रखो। डैड, मेरी बीवी कोई चोरनी नहीं है जो मैं उस पर नज़र रखूँ। बाप की बात का बुरा मनाकर बोला। चोरनी नहीं है, मगर तुम्हें धोखा ज़रूर दे रही है। मलिक साहब उसके चेहरे को अपनी चील जैसी निगाहों में रखे हुए थे। मोहतशिम इब्राहिम हाशिम अंकल का कज़न और राना आंटी का भाई है डैड, वो रिलेटिव्स हैं। मेल मुलाकात तो होती होगी। मैं तो अपनी कज़न से मिलता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मेरा उनसे कोई अफेयर है। फ़ाइन, तुम्हें लग रहा है मैं हवाई बात कर रहा हूँ। मेरा ये मतलब नहीं है डैड, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। हूँ, इस पैकेट में मौजूद तस्वीरों को देखो और बताओ, क्या ये मेरी गलत फहमी है या तुम फिर अपनी बीवी पर गलत एतमाद कर रहे हो? मलिक साहब ने हाथ में पकड़ा खाकी पैकेट टेबल पर पटकने के अंदाज में रखा। इल्हान ने एक नज़र बाप को देकर पैकेट अपनी तरफ खींच कर चाक किया। पैकेट में 4 से 5 तस्वीरें थी। मैं नबीहा अब्बासी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। वो मेरे दोस्त की बेटी है और मेरे इकलौते बेटे की मोहब्बत है और मुझे बहुत अजीज़ है। लेकिन तुम मेरी औलाद हो, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ तो अपनी आंखों को खोलो ताकि किसी बड़े दुख और धचके से बच सको। और ना ही मेरा मकसद नबिया पर बहतान लगाना, मैं सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आगे तुम यकीन करो ना करो, ये तुम पर डिपेंड करता है। अब उन तस्वीरों को देखने के बाद नबिया से कोई बात प्रस मत करना। कोई भी मुजरिम अपने मुंह से जुर्म का इकरार नहीं करता, इसलिए खामोश से जज करो। अगर ये सब सच हुआ तो जल्द ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। सो ही काम सो बी काम। वो खंजर की नोक पर दिलासा रखकर उसे देते ऑफिस से निकल गए। उनके जाने के बाद इल्हान ने टिल पर औंधी पड़ी तस्वीरों को देखा। एक तरफ दिल चाह रहा था कि उनको देखे बिना फाड़ दे, ये झूठ है, नबिया मुझे चीट नहीं कर सकती, मगर दूसरी तरफ दिल चाह रहा था कि देख ले, और आखिर डैड इतने वसौक से कह रहे हैं तो यकीनन कुछ तो गड़बड़ है। दिल में लगी सच
झूठ की जंग में सच की फतह हुई और इल्हान ने बाप के दावों को सच मानते हुए तस्वीरें उठाकर सामने किया। तस्वीर में नबिया और मोहसिन दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों के चेहरों पर हल्की मुस्कुराहट थी। दूसरी तरफ भी इस जगह की थी, मगर इसमें मोहसिन गाड़ी में बैठा और नबिया को हाथ हिलाकर अल्लाह हाफिज़ कर रहा था। इससे अगली तस्वीर में मोहसिन गाड़ी में बैठ चुका था और नबिया हाथ हिलाती चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए उसे खुदा हाफिज़ कर रही थी। ये तस्वीरों को शायद अरहम की पार्टी में की हैं, तो क्या मोहसिन इब्राहिम इस पार्टी में शामिल था? मगर ये दोनों कब मिले? इल्हान ने फिर से तीनों तस्वीरों को गौर से देखा। वो पार्किंग में ली गई थी, जहाँ इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतार के अलावा वो दोनों खड़े थे। दूर दूर तक कोई जीरू नज़र नहीं आ रहा था। नबिया तो मेरे साथ थी, फिर कब ये उससे मिलने गई? वो कमटी मसलता सोच रहा था। मुझे बताया भी नहीं इस बारे में कुछ। क्या डैड सही कह रहे हैं? नबिया मुझे चीट कर रही है, मगर क्यों? इस क्यों का जवाब ना पाकर मोहसिन ने चौथी और आखिरी तस्वीर सामने की। इस तस्वीर को देखकर वो करंट खाने के अंदाज में उछल कर खड़ा हुआ। व्हाट इज़ दिस? वो फटी फटी आंखें तस्वीर पर जमाए बड़बड़ा। तस्वीर नबिया मेहंदी का ड्रेस पहने अपने होश रात सरापे समेत मोहसिन के सीने से लगी खड़ी थी। मोहसिन का एक हाथ नबिया के कंधे पर था, जबकि दूसरा पहलू में गिरा हुआ था। दोनों के बीच शायद कोई 1-2 इंच का फासला हो, जो सरसरी देखने से बिल्कुल भी मालूम नहीं हो रहा था। व्हाट द हेल इज़ दिस? हान ने चटकते हुए टेबल पर पड़े गिलास को हाथ मार कर नीचे गिराया। नीचे गिरने से गिलास कांच इधर उधर बिखर गया। ये सच नहीं है नबिया, मुझे चीट नहीं कर सकती, वो चिल्लाया। शी लव्स मी, शी इज़ माई लव, शी कांट डिसीव मी, इट्स रॉन्ग, इट्स ऑल रॉन्ग। वो बालों को मुट्ठी में जकड़ता पागलों की तरह चिल्लाते हुए चेयर पर बैठा। कुछ देर बाद उसने टेबल की सतह से अपनी सुर्ख चेहरा उठाया। आई डोंट बिलीव दिस डैड, आई डोंट बिलीव। इल्हान ने बड़बड़ाते हुए मेहंदी की रात ली गई तस्वीर को कई टुकड़ों में बांटकर करीबी डस्टबिन में उछाला और टेबल पर हाथ मारता सा तासुरात लिए खड़ा हुआ। आई ओनली जज हर डैड, इफ शी श्योरली डिसी मी देन आई विल टेक द फाइनल एंड लास्ट डिसीजन। वो सांस लेता रुका। आई विल ड्रॉप आउट हर फ्रॉम माई लाइफ फॉर एवर। रोडे पर जोरदार अंदाज में मुक्का मारता रास्ते में आई हर चीज़ को पैरों तले रौंदता ऑफिस से बाहर निकला। हाल चढ़ की आवाज़ उभरी और गाड़ी का इंजन बंद हो गया। व्हाट्स रॉन्ग टुडे? मोहसिन ने स्टेयरिंग पर हाथ मारा। वो इतनी एहतियात से गाड़ी चला रहा था और वो थी के बीच सड़क पर रुक गई थी। चेहरे पर संजीदा और गुस्से के तासुरात सजाए वो बाहर निकला और गाड़ी का बोनट उठा उसे देखने लगा। इसको कदर तूफ़ानी बारिश में फीडर भी शायद ट्रिप हो गए थे, इसलिए स्ट्रीट लाइट्स भी बंद थी। मोबाइल की बैटरी तो पहले ही डेड थी, फिर वो कैसे गाड़ी की खराबी जान सकता था अंधेरे में ही। उसने अंदाजे से हाथ हिलाकर 1-2 चीज़ों को छेड़ा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। वो चिड़ की आवाज़ निकाल कर फिर बंद हो जाती। चंद मिनट कोशिश के बाद मोहसिन ने गाड़ी लॉक की और अपना सेल पैंट की जेब में डालता दाएं जानिब मुड़ गया टैक्सी लेने। बारिश और हवा इस कदर तेज थी कि वो हम बामुश्किल ही खुद को मुतवाज़िन रखता चल रहा था। फुटपाथ पर खड़े होकर आती जाती गाड़ी की हेडलाइट में उसने सड़क की दूसरी जानिब खड़ी गाड़ी को देखा। वो टैक्सी थी या किसी की ज़ाती गाड़ी, अंधेरे में उसी में अंदाज़ा नहीं कर पाया था। इसलिए वो सड़क क्रॉस करने के लिए फुटपाथ से उतरा ताकि वहां जाकर देख सके। अगर टैक्सी हुई तो वो घर जाने के लिए उसे हायर कर लेगा। दूसरी तरफ लेफ्ट साइड से आती ब्लैक होंडा की ड्राइविंग सीट पर बैठा इल्हान झुककर नबिया की पसंद की सीडी ढूंढ रहा था, जो बारिश में ड्राइविंग के दौरान सुनती थी। इधर उधर हाथ मारकर मतलूबा सीडी तलाश करके जब वो सीधा हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी जोरदार अंदाज में रोड क्रॉस करते मोहसिन के वजूद से टकराई थी। ज़बरदस्त तसादुम के नतीजे में मोहसिन का वजूद हवा में उछलकर बहुत दूर जा गिरा था। इस वहशतनाक माहौल में तूफ़ानी हवा की सनसनाहट के साथ कुओं के भौंके की आवाज़ें गूंजती दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। नबिया किचन में खड़े अपने लिए चाय बना रही थी। चाय बनाने के बाद उसने चाय कप में निकाली और कप उठाकर लाउंज में जाने के लिए मुड़ी थी कि अचानक कप उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर टकरा कर किरची किरची हो गया। नबिया हैरत से खड़ी देख रही थी कि अचानक कैसे हुआ ये। चंद लम्हों बाद वो टूटी किरचियों को समेटने की बजाय उन पर से फुलांग कर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरे में दाखिल हुई। बेड साइड टेबल से अपना सेल उठाकर मोहसिन का नंबर मिलाकर सेल कान से लगाया। द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ पावर्ड ऑफ की आंसरिंग टोन से वो बेचैन हो उठी। इतने ख़राब मौसम में सेल क्यों ऑफ कर दिया? मोहसिन उसने बड़बड़ाते हुए टेक्स्ट लिस्ट खोली। मोहसिन का आई एम कमी डेयर का टेस्ट आए तकरीबन 1.5 घंटा होने वाला था। इब्सार अंकल का घर इतना दूर तो नहीं कि इतनी देर लग जाए। वो हम कलामी करती सेल पर हाथ पर मारती खड़ी। जब बाहर कोई चीज़ बहुत बुरी तरह से गिरी थी वो डर कर चौंकी। शायद कोई खिड़की खुली है। वो जल्दी से अपने कमरे की विंडो पेन बराबर करके कर्टन आगे करती कमरे से निकल आई। घर के सारे दरवाजे खिड़कियाँ लॉक करने के बाद वो लाउंज में आकर टहलने लगी। कहाँ रह गई मोहतशिम? हर 10 मिनट बाद वो चक्कर काटती बेचैनी से फिक्रा दोहराते जा रही थी।
ٹہر ٹہر کر جب پاؤں شل ہو گئے تو نبیہ نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو 11:30 کا ہنسا عبور کر چکا تھا۔ نبیہ کو ٹہلتے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ تھک کر پاس پڑے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ سیل پر پھر سے محسن کا نمبر ملا مگر پاور آف کی ٹون پر اس نے بدمزہ ہو کر سیل ٹیبل پر ٹپکا اور خود ٹانگیں اوپر کر کے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ دل کے دھڑکنے کی رفتار اسے کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی مگر وہ انہونی کیا تھی؟ فی الحال نبیہ اس بات سے بے خبر تھی۔